little learners, today we are going to start with chapter 10, that is conservation of environment. So in this chapter, I will tell you about what is conservation. I will tell you its meaning. Right now, water generation disposal. Next type of waste. हमारे पास two types of waste है, that is biodegradable and non-biodegradable. Now ways of disposal waste और कैसे हम reduce कर सकते हैं waste को with 4R, that is reuse, recycle, right? So let's study with the chapter now. Here the warm up given. You have to look around you and make a list of things that you see in your surrounding. ठीक है, वो चीज बतानी है और वो बताना है कि आपको वो living है या फिर non living है, right? So our environment consists of living and non living things और both दोनों ही क्या है important है for our environment. Living things में जैसे हम human beings हो गए, plants हो गए, animals हो गए, they all come under living things, right? If we talk about non-living things, we have air, water, soil and sunlight. देखो air हो गई, water पानी, sunlight धूप, ये सब क्या हो गए? ये सब non-living things हो गए. They and living things are dependent on non-living. ये interdependent है, living things किस पे depend है? Non-living things पे. So it's necessary to maintain balance between the two. और जरूरी भी है कि हम दोनों के बीच में क्या रखें? Proper balance रखें. Now meaning of conservation. So it's important that we conserve our natural resources. देखो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने natural resources को conserve करना है, right? And do not damage our environment. और हमें environment को damage नहीं करना. We must protect plant and animal, and moreover, we should use our natural resources in such a way that they last for a longer. ठीक है, आपको क्या करना है? अपने natural resources को बचा के रखना है, उनको damage नहीं करना है, and आपके जो plants हैं, animals हैं, उनको protect करना है, and we should use our natural resources. हमें अपने natural resources का use करना है उस तरीके से जिससे हम क्या कर सके, उसको longer time तक उसका use कर सके. So conservation is a careful maintenance and protection of the environment. To prevent it from disappearing. ठीक है कि क्या है, आपको जब आपको कोई भी रिसोर्स का एक केयरफुल मेंटेनेंस रखना है और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है डिग्रेड होने से या और उसको खत्म होने से, तो आप क्या करोगे? कंजर्वेशन करोगे. So we as the responsible citizen can conserve and protect our environment by controlling various kinds of pollution. ठीक है, आपको कंजर्व करना है, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है विद डिफरेंट पॉल्यूशन. सो आप क्या कर सकते हो? आप 4 आवर्स प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड डिफ्यूज. नाउ फॉलो द स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. हियर सम स्टेप्स हैज बीन गिवन that you can use to protect your environment. Like first is we should use the garbage bins to throw waste material of household garbage. ठीक है, आप garbage bins का यूज करो. ऐसे कि घर में ऐसे लोग क्या करते हैं, बाहर सड़क पे फैला देते हैं गार्बेज को. वो आपको नहीं करना, उसको आपको प्रॉपरली डस्टबिन में डालना है, राइट? और यूज करना है किसका? डस्टबिन का. We should not throw garbage in public places. We should not throw anything in streets, drains and rivers. देखो जैसे मैं आपको बताया कि आपको पब्लिक प्लेसेस पे मतलब आपको गार्बेज नहीं थ्रो करना है. एंड जो रिवर में बहुत लोग क्या करते हैं, देखो फैक्ट्रीज वेस्ट कर जा रहा है, रिवर में जा रहा है, लेक्स में जा रहा है. सो वो क्या कर रहा है? हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है. भाई वाटर हार्म हो रहा है, भाई वाटर में पोल्यूशन हो रहा है, और जो हम पेड़ों में अगर पानी को डालेंगे तो हमारे प्लांट्स लाइफ भी क्या हो रही है? इफेक्ट हो रही है. So we should not spit or urinate anywhere on the road, right? आपको क्या करना है? कहीं भी urinate नहीं करना है. You must use toilets for that. And then we should use only paper bags or cloth bags. Plastic bags are harmful for the environment. ठीक है, क्यों हार्मफुल होते हैं प्लास्टिक बैग्स? क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बहुत ये डिकम्पोज नहीं होते. Now discourage mosquitoes breeding by not allowing stagnation of water as its way cause disease. भाई बहुत जगह क्या होता है, भाई बारिश पड़ी, आपने देखा होगा, तो घर के आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है. तो वो नहीं करना चाहिए बिकॉज कि मॉस्किटोज वहाँ पे ब्रीड करने लग जाता है. उससे क्या हो सकता है? आपको डिजीज हो सकती है. वाटर ब्रॉड डिजीज लाइक मलेरिया, लाइक टाइफाइड, ये आप कॉज कर सकते हो, राइट? नाउ वेस्ट जनरेशन एंड डिस्पोजल. ठीक है, वेस्ट क्या होता है? एनीथिंग, कुछ भी चीज या कोई भी मटेरियल that is no longer useful to us is called waste. जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमारे वो किसी यूज का नहीं है, तो क्या हो गया? वेस्ट हो गया. So it consists of fruits and vegetable peels,
old newspaper magazine, broken glass, metal cans and many of them. ये जो improper disposal of waste है, ये सबसे बड़ी problem है, right? It's an environmental big problem. So we have kinds of waste, that is biodegradable waste and non-biodegradable waste. Biodegradable waste क्या होता है? It's a kind of waste which is obtained from plants and animals. जो plants और animals से obtained होता है, which rots easily and mixes with the soil. Vegetable and fruits peel, kitchen waste, meat and bones, flowers, leaves, paper, ये सब क्या है? आपके biodegradable है. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी हो गई, बैक्टीरिया हो गई, अर्थवॉर्म हो गई, ये किस में हेल्प करते हैं? टू डिकम्पोज सच वेस्ट. नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये कौन सा वेस्ट होता है? जो रोट नहीं होता, एनवायरमेंट में ही रहता है फॉर द लॉन्गर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, और ये हमारे एनवायरमेंट को हार्म करता है. जैसे आपके प्लास्टिक गुड्स हो गए, मेटल कैंस हो गए, सिंथेटिक ग्लास बॉटल्स हो गई, सिल्वर फॉइल हो गए, these all are non-biodegradable. If not disposed properly, अगर आप इनको properly dispose नहीं करोगे, then they chalk drains. ठीक है, जो आपके drains होते हैं उनको chalk कर लेते हैं, clog the land and water bodies and pollute our surrounding. Waste generated from the parts of electronic goods, जैसे आपके कंप्यूटर हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए और आपके टेलीविजन हो गए, इनके अंदर क्या होती है? लीड होती है, जो क्या होती है? पॉइजनस होती है. तो हम इसे क्या कहते हैं? ई वेस्ट कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं. Now let's start the next topic, that is smart ways to disposed waste. देखो, अब अलग अलग methods का हम use करते हैं waste को dispose करने के लिए. जैसे हम बात करें landfills, तो what are landfills? These are deep ditches are dug into the ground to dump waste. When the pit is filled and it is covered with soil, over the year garbage is the landfills decomposes and it is absorbed in the सॉइल. गार्बेज को हम क्या करते हैं? लैंडफिल्स में ऐसे बंद कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर सॉइल डाल देते हैं. एंड पार्क्स एंड गार्डन्स आर आल्सो बिल्ट ओवर देम. सो मोस्ट ऑफ द लैंडफिल्स आर फाउंड इन आउटस्कर्ट्स. जो आपको लैंडफिल्स होगी ना, वो ज्यादातर आपको आउटस्कर्ट्स पे देखने को मिलेगी. नेक्स्ट इज कंपोस्ट पिट. इट्स अ गुड मेथड ऑफ डिस्पोजिंग किचन वेस्ट एंड अदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. किचन वेस्ट इज बरीड इन अ डीप पिट. जो किचन वेस्ट है, आप उसको एक बहुत बड़े पिट में क्या करते हैं? बरी कर देते हैं. एंड कवर इट विद द टाइम द वेस्ट रोट्स एंड बिकम कंपोस्ट. ठीक है, और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो कंपोस्ट बन जाता है. मतलब हम उसको एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं क्रॉप्स में. क्रॉप्स ग्रोइंग यूजिंग काइंड ऑफ मैन्योर आर हेल्थियर एंड एज कंपेयर टू वन विच इज ग्रोन एज केमिकल फर्टिलाइजेशन. और इसको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक फूड. नेक्स्ट कम्स बर्निंग. मतलब वेस्ट को कलेक्ट करा जाता है, फिर उसको जला दिया जाता है, राइट? लेकिन ये गुड नहीं है, ये अच्छा मेथड नहीं है, बिकॉज मेनी पीपल में कॉज हार्म ड्यू टू द बैड एयर. ठीक है, जो गंदी हवा से इफेक्ट होता है, लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है. सो एवरीवन शुड सेपरेट हाउस होल्ड वेस्ट सच एज पेपर, किचन वेस्ट, ग्लास एंड मेटल. इसको हम वेस्ट सेग्रेशन कहते हैं. आपको ये करना होता है ना, आपकी आप ग्रीन में अलग वेस्ट डालोगे, ब्लू बिन में अलग वेस्ट डालोगे, राइट? सो आपको इसका यूज करना है. नेक्स्ट इज ओपन डंपिंग, जिसमें क्या होता है? वेस्ट इज टेकन अवे फ्रॉम टाउन एंड सिटीज, और उनको एक बहुत बड़े एरिया में एक्सपोज कर दिया जाता है. पाइल्स ऑफ गार्बेज रोट एंड ग्रेजुअली इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द सॉइल. और जो डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट है, ये वो वे है जो आपके इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है? पॉल्यूट कर रहा है. नाउ रिड्यूसिंग वेस्ट. To save our environment, we must follow 4 R's: refuse, reduce, reuse and recycle. Refuse means refuse the things that create garbage. आप उसको ना खरीदे जिससे garbage बन रहा है खाली, right? For example, shopping, carry your own cloth bag. आप shopping पे जा रहे हैं, आप अपना बैग कैरी करो, ना कि वहां से प्लास्टिक बैग लो, right? So no to paper bills, always ask for a e-bill. मतलब पेपर बिल ना लो, ई बिल लो. नेक्स्ट इज रिड्यूस, मीन्स द यूज ऑफ थिंग्स विच इज जनरेटेड विच जनरेट गार्बेज. जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हो गए, मेटल कैंस हो गए. What happened? We generally buy more than what we need and then dispose of some of it. भाई हमें जितनी चीज चाहिए उससे ज्यादा खरीद लेते हैं, फिर वही वो वेस्ट जाता है, तो उसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फ्रूट्स बाय करे हैं एंड सम ऑफ देम आर रोट, तो आप क्या करते हो? उन्हें फेंक देते हो, खाते तो हो नहीं. So thereby it is increasing garbage. So we must buy as per our need. It will reduce garbage. Now reuse. Instead of disposing away plastic bottle, ठीक है, आप क्या करोगे? प्लास्टिक बॉटल्स को डिस्पोज करने से अच्छा उनको स्टोर करो फॉर द वाटर.
So used glass jar that can be reused to store things in the kitchen. Shopping bags and duster can be made from old. आप shopping bags बनाओ old clothes से, duster बनाओ for dusting the house, right? Now recycle things that cannot be reused. जो भाई जिनको दोबारा से use नहीं कर सकते and can be used to make other useful thing. This is known as recycle. द जंक डीलर से कबाड़ी वाला है, वो आपके घर से ओल्ड न्यूज़पेपर ले जाता है, बुक्स ले जाता है, मैगजीन ले जाता है, प्लास्टिक ले जाता है, ठीक है, मेटल वेस्ट ले जाता है और फिर उसको ले जाके क्या करता है, रिसाइकिल करता है. सो प्लास्टिक, मेटल एंड ग्लास पीसेस दीज आर मेल्टेड और इससे नई चीजें बनती हैं. पेपर को भी रिसाइकिल करा जाता है एंड वी कैन इवन रिसाइकिल वाटर दैट वी यूज इन आवर किचन. आप क्या करो, उससे पानी दे दो प्लांट्स में, right? So this is all about the conservation of environment. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. Thank you.